the data basic uniformly the definitions only. Now when we go for the measurement of the data, this will start the classification of the data only. So there are around broadly four classifications for the data. Maybe those have their graduation, masters, the test paper, they will maybe go through this nominal data, ordinal data, then interval data, then ratio data. Okay. So nominal data means this is very lowest and very basic data types or measurement scale, that the data that represent categories or group without any intrinsic orders. So like suppose if we are seeing the blood groups, so A plus, B plus, AB, O, whatever. So there is no need of the orders, or it is not like first will come A, then it will come B, then it will come C, B plus, A plus. So there is no order. Like same thing, marital status. There is no intrinsic order. First whatever they will come. Same thing are like genders, male and females. So where this is like a name only. Nominal data is like some names only. So it's have that there are so many things like hair colors only, okay, race only, smoking status only, okay. So there is no need of the order and there is no intrinsic orders in the data only. And then again it will come the ordinal data. So it's have some order, okay, like stage of the cancer. So it will not come like fourth stage first. It will start from the first stage, second stage, third stage, fourth stage, whatever that. Okay. Same thing. Likert scale responses. It will start from some. You can start from the strongly agree or strongly agree, but it will go by the some stages only. Suppose if I started from the strongly disagree, then disagree, then neutral, then agree, then strongly agree. You can do the opposite side like start from the strongly agree, but it's okay, no problem. Then again for that degree of illness, okay, so none, mild, moderate, severe, it will go like this only, okay. So here we have these two types. If you further we classify the data, that is the qualitative and quantitative data. So whenever we have the qualitative data, our measurement scale will go like this only, nominal or ordinal. In qualitative data we will always have two measurement scales like ordinal and nominal, okay. And then interval. So interval, that is the numerical values where the interval between values are meaningful but there is no true 0 points. So the true 0 points means what we can understand this thing only. Anyone have know this thing? True 0 points. That interval data, which type of the data we say the interval data. I have given some examples, but other than these examples, pain, टाइम, टेम्परेचर किस तरीके से होगा, किस तरीके का, यहाँ पे इसे मैंने लिखा है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ओके, आईक्यू स्कोर है रिटन, सर्वाइवल डेटा. बट सर्वाइवल देखिए जो इस डेफिनेशन का उस इंटरवल डेटा में, उसके बाद एक डेटा है दूसरा रेशियो डेटा, सही है. दोनों डेटा जो है एकदम से सेम, जिस तरीके से नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा था, ऑर्डिनल डेटा जो हमारा नॉमिनल डेटा है, अगर उसको हम कोई ऑर्डर दे दें तो वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल में. ऐसे ही इस इंटरवल डेटा में अगर हम जीरो को इंक्लूडेड करेंगे, सही है, कोई एक उसका बेस पॉइंट रखेंगे, जिससे सपोज करिए कि 20 डिग्री और 40 डिग्री, तो इसमें क्या है कि कोई बीच का कोई 0 पॉइंट नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन किसके बीच में है, 20 और 40 के बीच में या 30 के बीच में, सही है. और यहाँ पे क्या होगा, रेशियो में क्या होगा कि इसको हम जब भी कंपेयर करेंगे तो इसका कोई एक बेस या रेफरेंस पॉइंट होगा. जैसे वेट है, सही है, तो वेट कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, जीरो से, कोई इसका एक लिमिट है, सही है. इसके बाद में हाइट है, सही है, एज है, तो इन सब में क्या है कि एक हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना. दोनों डेटा अदरवाइज सेम है, लाइक ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा की तरह, ओके. फिर ये मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबके अपने अपना, कि जैसे नॉमिनल डेटा के लिए इन्वॉल्व पुटिंग ए वेरिएबल इनटू ए स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज,
तो अगर हम कोई हमारे पास डेटा उसकी कैटेगरीज होंगे, कैटेगरी डू नॉट करस्पॉन्ड टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, अच्छा देखिए जो नॉमिनल डेटा है, इसे सपोज करिए कि हमने अगर मेल फीमेल लिया हुआ है, हमारा नॉमिनल डेटा है, बट जब भी हम सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे उसको, 0 1 में करेंगे, सही है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो न्यूमेरिकल डेटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कतई कि वो न्यूमेरिकल डेटा बन गया। बट अगर सपोज करिए कि आपने एसपीएसएस में उसको एंट्री किया और उसकी एनालिसिस आपने क्वांटिटिव डेटा में कर दी, वो आपको न्यूमेरिकली रिजल्ट देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो 0 1 को क्या कर रहा है, वो एज ए न्यूमेरिकल कंसिडर करेगा। ओके, वो उससे नहीं पता, उसको नहीं, जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे वेरिएबल को, तब तक वो उसको न्यूमेरिकल ही मानेगा। जब आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तब उसको वो क्या करेगा, कैटेगोरियल डेटा में लेगा, या आपका नॉमिनल डेटा में लेगा, या फिर ऑर्डिनल डेटा में लेगा, जिस तरीके का डेटा है उसे। अच्छा, एसपीएसएस में सबसे अच्छी एक बात जो ये है कि वो वहां पे आपको स्केल डिफाइन करना पड़ता है। जो स्केल की हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये स्केल आपको डिफाइन करना पड़ता है। बाकी सॉफ्टवेयर में स्केल आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तब भी आप लिख रहे हैं, बट आप उसको वहां पे आप जब भी एनालिसिस करेंगे तब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बट एसपीएसएस में क्या है कि जब भी आप डेटा एंट्री करेंगे तो वहां पे आपको स्केल भी पूछेगा, मेजरमेंट स्केल क्या है, और वो चारों स्केल आपको ऑप्शन में आएंगी, आपको एक स्केल कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑर्डिनल डेटा जिसे हम लोगों ने बताया था कि स्कोर कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कोई ऑर्डर हम दे सकते हैं। ओनली रैंक ऑर्डर इज इम्प्लाई दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड रेदर देन द फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द रेस नोइंग दैट सो फ्रॉम द। फिर इंटरवल डेटा का भी वही जो अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एक समरी रिपोर्ट से एक तरीके से। अच्छा इंटरवल में रेशियो फर्क क्या है सर? इंटरवल में क्या है कि कोई सिर्फ इंटरवल होगा, समझ करिए कि हमने डिग्री में अगर टेम्परेचर लिया हुआ है 20 और 40 में है, तो उसका क्या है, कोई रेफरेंस भी हम यहीं पे इसका इंटरवल देख ले रहे हैं कितना डिफरेंसेस है। रेशियो में क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट 0 पॉइंट होगा, सही है। यही फर्क है ना, जो आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हाँ तो आप माइनस चलेगी तब भी हाँ, क्वालिटी होगी। इसके अलावा कोई फर्क और भी है? और तो मैंने नहीं देखा है कोई फर्क ऐसा, जैसे न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स हाँ टेम्परेचर वेरिएबल है ना, हाँ, बाकी तो ह्यूमन साइज नहीं होता काम ये होता नहीं है, बट जैसे रेशियो या रेशियो देखिए सबसे ज्यादा यूज होता है रेशियो का, बहुत रेयरली जब भी टेम्परेचर की बात आएगी, खास तौर से टेम्परेचर की में जब भी हम करते हैं तब हम हमारा इंटरवल डेटा का ज्यादा यूज करते हैं। बाकी तो जगहों पे इंटरवल डेटा बहुत कम ही। देखिए सर, कोई कभी कभी क्या है कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं कि जैसे कोई भी क्लासिफिकेशन ऐसा आ गया, कोई एनिमल्स ऐसा आ गया जो एनिमल की कैटेगरी में नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, हम फिर एक क्लास क्रिएट करेंगे, सिर्फ एक के ही लिए सही, मगर क्लास तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कि अब जब जरूरत हमको डेटा एनालिसिस की है, तो वैसे आप तुम नहीं कह सकते कि हम टेम्परेचर वाले डेटा को एनालिसिस नहीं करेंगे, हम इस पे स्टेट्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है तो उसको क्रिएट करिए, उसके लिए अपडेट करिए अपने मॉडल को। तो बस इतना ही है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सारी जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। अभी जब मैं स्टडी कर रहा था इस लेक्चर के लिए, तो क्लासिफिकेशन के लिए कि क्लासिफिकेशन किस तरीके, तो बहुत सारे, जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि जो ऑर्डिनल डेटाज हैं या जो क्वालिटेटिव डेटाज हैं वो नंबर्स में नहीं होते। हम लोग जो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डेटा वी कांट मेजर इन द नंबर्स इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा। फिर उसमें अगर जैसे अगर हम जाएंगे बायोलॉजिकल स्टडीज में, बॉटनी टाइप से स्टडीज में, या फिर जो इंसेक्ट वगैरह में, तो उसमें क्या है कि हम रेशियो भी होता है कि पेयर वाइज कंपेरिजन। पेयर वाइज मीन्स कि अगर उसके कितनी लेग्स हैं, लेग्स पेयर में होंगी, तो जब पेयर में होगा तो टोटल होगा कुछ, उसका पेयर होगा। तो अगर पेयर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो वहां पे अगर हम जो कंपेरिजन करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा, बट स्टिल वो है क्वालिटेटिव डेटा है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल डेटा भी होता है, बट हमको उसको लेना है क्वालिटेटिव डेटा में, वो जहां कैसे देखना है कि कैसे हम उसका रेशियो निकाल रहे हैं। सही है। फिर इसके बाद में जो डेटा का एक फर्दर क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन दी, जो भी मैंने बता रहे थे कि दो डेटा जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा है। तो डेटा एनालिसिस किया था हमने, तो इन जनरल हमारे फील्ड में हम कलर, किस डिपार्टमेंट? फार्मा ओके, तो उसमें कलर एनालिसिस है, वो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि इस मेडिसिनल पाउडर का क्या कलर है, क्या टेक्सचर है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। अब इसको हमने उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया सर्टेन सॉफ्टवेयर से, तो भी वो क्वालिटेटिव डेटा में ही उसको लेंगे।
वैल्यू में आपने कन्वर्ट किया, वैल्यू में मतलब कन्वर्ट करने का मतलब ये होगा कि आपने उसको कोई एक अपनी रिकॉग्नाइजेशन के लिए वैल्यू दी या उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी कलर की तो फिर वो हमारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा में चला जाएगा। अगर आपने अपने रिकॉग्नाइजेशन के लिए जैसे अपने कोडिंग करा, जिसे हम कहते हैं कोडिंग करना, अगर आपने कोडिंग की हुई है कि पिंक कलर को 1 दे दिया, ब्लैक कलर को 2 दे दिया, इस तरीके से अगर आपने करा है और फिर एनालिसिस की है, तब फिर वो क्वालिटेटिव डेटा में ही एनालिसिस होना चाहिए। नहीं, एक तो हमने कोडिंग नंबर दिया हुआ है, हाँ। या हमने रिसर्च का वैलिडेट किया हुआ, ऑलरेडी कोई स्केल डेवलप की हुई है। हाँ। तो दोनों में फर्क क्या है? किस चीज में? अगर मान लीजिए नंबर कलर को हाँ। वैलिडेट करने के लिए हमने कोई रिसर्च करी और हाँ। कहा कि इस कलर को यही नंबर है, और ऐसा होता है ना, किसी प्रोसीजर को वैलिडेट करने के लिए रिसर्च करते हैं, उसकी जरा वैलिडेट करते हैं ना। वैलिडेट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको के जैसे इसके लिए यही नंबर फिक्स है, वो तो आपका अपने जैसे स्पेसिफिक हाँ। पॉपुलेशन के लिए, हाँ। स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए वो हम करते हैं ना कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए करते हैं ना, कभी-कभी ऐसा है। हमारे यहाँ होता है फिर हम लोग करते हैं, मान लो किसी की डिसेबिलिटी मेजर करनी है ना, हाँ। तो हम उसको जो है अलग-अलग करके स्पेशल करके वैलिडेट करते हैं और हमारे लोग उसको मानते हैं। हाँ, तो वो वही एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन जैसे वो क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे कि कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन में बी मतलब निगेटिव से -1 से 1 के बीच में कोरिलेशन की वैल्यूज होती है, सही है। अब हम कब मका के -0 से -1 की तरफ भी स्ट्रॉन्ग मानते हैं, बट नेगेटिव 0 से 1 की तरफ भी जाएगा डेटा अगर हमारा, तब भी कोरिलेटेड है, पॉजिटिव कोरिलेटेड। पहले तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में है कि कब वीक है, कब वेरी वीक है, कब मॉडरेट में है, कब हाई स्ट्रांगली हुआ है। तो वो क्या है कि वो उसका कोई फिक्स नहीं है, उसका कोई भी स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि अगर 0.75 है तब हाईली कोरिलेटेड है, या 0.89 है तब हाईली कोरिलेटेड है, या पूरा 1 है तब हाईली कोरिलेटेड है। बट क्या है कि उसका सिर्फ एक सिंपल सा रूल है कि एज अप्रोचेस टू 1 इज गो टू द हाईली कोरिलेटेड। जैसे जैसे वो 1 के साथ अप्रोच करेगा हम उसको कहेंगे हाईली कोरिलेटेड, जैसे जैसे वो 0 की तरफ आएगा हम कहेंगे कोरिलेशन वीक है। अब कुछ किसी के यहाँ मतलब मैक्सिमम कोरिलेशन के जो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज है 0.5 आ रही है, तो वो क्या कहेगा 0.30 भी उसके लिए मॉडरेट कोरिलेटेड हो जाएगा, या 0.45 भी उसके लिए हाईली कोरिलेटेड हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टिगेटर ने क्या फिक्स किया हुआ है। जैसे आप लोग अभी हम जाएंगे खैर उस पर, मतलब जैसे होता है कि जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम जो एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, लेवल ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होती है, तो वो कहाँ से मैक्सिमम जो होती है कि भाई 10% ज्यादा तो नहीं ले सकते, मगर क्या अगर कोई ह्यूमन स्टडी है उसमें आपने 10% ले लिया तो वो तो ब्लेंडर हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कैसी आपकी रिसर्च चल, किस चीज पे रिसर्च है और इन्वेस्टिगेटर का इंटरेस्ट क्या है। तो ऐसे ही उसके लिए है कि क्लासिफिकेशन है, आपने कितना क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अगर उसकी डिसेबिलिटी अगर इतनी है तो हम उसको ये कैटेगरी में डालेंगे, सही। तो हमारा क्वालिटेटिव डेटा था जो हमने अभी बताया था कि क्वालिटीज या कैटेगरीज जो डेटा होगा, या फिर हम कहेंगे सिंपली कि वी कांट गिव द न्यूमेरिकल वैल्यूज और न्यूमेरिकल डेटा। ओके, इसमें फिर 2 कैटेगरीज का जो हमने मेजरमेंट स्केल दिया बताया था अभी, उसमें ये 2 मेजरमेंट स्केल हम लोग यूज करते हैं, एक नॉमिनल होगी दूसरी ऑर्डिनल होगी। ओके, फिर दूसरा होगा क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि एक बहुत अच्छा खासा मतलब फील्ड में, खासतौर से क्वांटिटेटिव डेटा में, क्वालिटेटिव डेटा में तो बहुत लिमिटेड हो जाता है क्वांटिटेटिव डेटा में, क्योंकि मोस्टली अगर हम न्यूमेरिकल एक चीजें जितनी भी हैं तो इसमें फिर उसके बाद में आता है कि एक डिस्क्रीट जो अभी मेजरमेंट ऑफ स्केल के हिसाब से जाएगा इंटरवल में और रेशियो में। इसके बाद में इसमें एक और क्लासिफिकेशन फर्दर होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का। अभी रिसेंटली हमने एग्जाम लिया हुआ तो उसमें मैंने जैसे डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा को पूछा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने डिस्क्रीट डेटा के एग्जाम्पल्स में क्या लिख दिया 1 3 5 अगर है तो हमारा डिस्क्रीट होगा, 1 2 3 4 5 मतलब कंटिन्यू नंबर है तो वो कंटिन्यूअस डेटा होगा, ठीक है। तो क्योंकि उनको हुआ ये था कि जो मैंने उनके साथ पीपीटी शेयर किया था उसमें मैंने एक उनको स्लाइड में दिया हुआ कि जब अगर डेटा के बीच में बिटवीन डेटा गैप होगा, सही है, तो उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहेंगे, अगर गैप नहीं होगा तो उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। तो गैप से मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि 1 और 5 के बीच में 1 का 2 का गैप है तो ये डिस्क्रीट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू है 1 2 3 4 5 है तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट डेटा में हमेशा क्या होता है कि जब ये जो है कि कोई भी हम फुल नंबर्स में होल नंबर जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, होल नंबर के जैसे 0 1 2, अभी कभी से कोई हम पॉपुलेशन ह्यूमन की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं तो 1.5 तो नहीं लिखेंगे ना, कोई आधा तो होगा नहीं,
डिस्क्रीट होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, सीधा सीधा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो। तो जहां भी हम किसी की काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग कर रहे होंगे वहां पे हमारा डिस्क्रीट डेटा आएगा। सही है। फिर उसी के तरीके से अगर जैसे कि हम कर रहे हैं, किसी का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, या हाइट मेजर कर रहे हैं, या वेट मेजर कर रहे हैं, या एज मेजर कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जैसे 25 ईयर्स 0.6 मंथ। सही है। तो इस तरीके से, या 5.6 इंचेस। सही है। वेट 25 kg 0.5 पे, वो भी डेसिमल्स में। तो ये फ्रैक्शन में एक तरीके से कह सकते हैं इसको। अगर हम जनरलाइज थोड़ा सा करें कि फ्रैक्शन में अगर डेटा है तो उसको हमारा कंटिन्यूस डेटा होगा, अगर हमारा होल नंबर डेटा है तो हमारा डिस्क्रीट डेटा होगा। नहीं नहीं, कंटिन्यूस तो हो सकता है, जैसे कि वन कंटिन्यूस डेटा तो है, बट 1.5 डिस्क्रीट नहीं है। हाँ, can't be this continuous may be, sorry, discrete may be the continuous but it's not the same thing। उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपने एस्टिमेशन कर रहे हैं, हम ह्यूमन पॉपुलेशन का एस्टिमेशन कर रहे हैं और हमारा आ गया 20.5 आ गया। अब या तो हम उसको 20 कर लेंगे या फिर हम उसको 21 कर लेंगे, क्योंकि मीन जब भी हम मीन निकालेंगे तो वो तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज में देता है, बट अब डिपेंड करता है कि हम किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। सही है। तो उसको हमारा यही है कि पॉइंट में नहीं लिखते हैं। जब भी अगर सपोज करिए कि कहीं भी जहां पे नंबर ऑफ काउंटिंग अगर बात आ रही है और वहां पे हमने एस्टिमेशन किया हुआ है, मीन वगैरह निकाला हुआ है, तो अगर वहां पॉइंट में आ रहा है तो हम अगर उसको अप्रोक्सीमेटली लिख के और होल नंबर्स में लिख देंगे। फिर सोर्सेस के बेसिस पे भी डेटा का क्लासिफिकेशन है। सोर्सेस के बेसिस पे भी मींस कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस। ओके, तो प्राइमरी डेटा हम सब जानते ही हैं कि फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा जो भी होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी डेटाज होते हैं, चाहे वो हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा हो या कोई और भी डेटा हो। सही है। बट मोस्टली रिसर्चेस जो होती हैं वो सारी ज़्यादा प्राइमरी डेटा के बेसिस पे होती हैं। ठीक है। और बहुत सारे मतलब आर्टिकल तो बहुत सारे सेकेंडरी प्राइमरी सब पे पब्लिश होते हैं, बट रिसर्चेस की बात में हम कर रहे हैं, जैसे जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है हमारी। ओके, तो सर्वेज हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, ये सारे चीज हो गए, ये हमारे आ जाएंगे प्राइमरी डेटा में। ओके, ये इसके सोर्सेज हैं। सेकेंडरी डेटा कि किसी और ने किसी पर्पज के लिए डेटा कलेक्ट किया था, अब उस डेटा को हम यूज कर रहे हैं, तो वो हम अपने पर्पज के लिए, दैट इज आवर सेकेंडरी डेटा। ओके, लाइक हॉस्पिटल्स, सेंसस डेटा, पब्लिश रिपोर्ट्स, वट एवर द। अच्छा, कुछ डेटा होते हैं जो बेस्ड ऑन द टाइम, जैसे क्रॉस सेक्शनल डेटा, कि हमने किसी एक सिंगल पॉइंट पे डेटा को कलेक्ट किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम, कि अभी जैसे कि कोरोना था, तो कोरोना की जो डिजीज है उसका जो प्रिवलेंस अगर आप देखेंगे तो वो हाई कहाँ मिलेगा हमको, 2019 से लेके 21-22 के बीच में। उसके बाद में केसेस बहुत कम हो गए, है ना। तो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर हम देखेंगे डिजीज को, तो हमारा वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। ओके, फिर होता है लॉन्गिट्यूडिनल डेटा, ये कि द डेटा कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व ट्रेंड इन चेंज। तो इस तरीके का डेटा आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा ज्यादातर, इकोनॉमिक्स टाइप के डेटा, इकोनॉमिक्स है या वेदर जहां भी हो रहा है ना, सीजनल वेरिएबिलिटी अगर हमको देख रहे हैं, तो वहां पे इस तरह के डेटा को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इस तरीके के यहाँ तक किसी को कोई डेटा के रिलेटेड के कंफ्यूजन हो किसी तरीके का कि सर अगर हमारा इस तरीके का डेटा है, या हम कैसे पहचाने कि डेटा हमारा किस तरीके का है, या हम देखिए जब भी हम फील्ड रिसर्च में जाते हैं, ठीक है, फील्ड रिसर्च मतलब चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कोई भी हो, डेटा को हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए होता है कि हमको डिजाइन करना है कि हमारा डेटा किस टाइप का आएगा। सही है, क्योंकि अगर जिस टाइप आप आईसीएमआर में या कोई भी इस तरह के बॉडीज हैं, मैं आईसीएमआर रहा हूँ तो बेसिक बताऊँ, वहां जब कोई भी प्रपोजल होगा, जब तक स्टेटिशियन उसको वो नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा, वो उसको अब नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अभी 2022 में 30 स्टेटिशियंस उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट साइंटिस्ट सी पे सेलेक्ट किए हैं, 30। क्योंकि उससे पहले क्या था कि उससे पहले सारे जितना पहले तो बहुत कम जगहों पे स्टेटिशियन थे, और वो जो थे भी वो टेक्नीशियन स्टेटिशियन थे, जिसे कहते हैं कि जो सिर्फ एमएससी बेसिस या बीएससी बेसिस पे डेटा एंट्री वगैरह करने के लिए। पर अब क्या है कि अब उन्होंने नहीं, पीएचडी क्वालिफाइड साइंटिस्ट की ग्रेड उनको देंगे, बी सी वट एवर। अभी 29-30 तारीख में साइंटिस्ट बी का वो है रिक्रूटमेंट है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है। सही है। तो आईसीएमआर को ऐसा क्यों करना पड़ गया, क्योंकि बाहर की फंडिंग एजेंसी, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था उसमें
मिलिंडा एंड गेट्स की फंडिंग थी, वो करोड़ों से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट जब उनके पास जाए तो वो उनको है कि हाँ भाई कुछ आपने वैलिड स्टेटिस्टिक्स भी लगाई हुई है, वैलिड उसमें काम हुआ है, और जो जिसका काम होता है वो तो हम लोग जानते हैं, जो जिसका काम है अगर वो नहीं करेगा तो वो फिर अच्छा तो होगा। जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक तरीका से वो है जैसे एक दुल्हन के लिए ज्वेलरी होती है, हर साइंस के लिए स्टैटिस्टिक्स उस तरीके से है, हर रिसर्च के लिए। कोई भी रिसर्च अगर बिना स्टैटिस्टिक्स आपने सही से नहीं लगाई हुई है तो फिर वो आपको मजा नहीं देता। रिजल्ट तो आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि अभी आप कोई डेटा को डिकोड किया आपने 0-1 में और उसका एनालिसिस आपने किया, अगर आप जो चाह रहे थे बाई इत्तेफाक अगर वो आ गया तो आप बड़ा खुश, आप फिर सोचेंगे भी नहीं कि इसमें ये सही हुआ या नहीं हुआ, है ना। अगर जैसे खुदा न खास्ता आप चाह रहे थे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाना चाहिए थी और वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, आप फिर कुछ नहीं सोचेंगे उसके बारे में कि हमको तो यही चाहिए था, वो एक्सीडेंटल रिजल्ट कि हमको तो यही चाहिए था वो आ गया। और स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुई है, खासतौर से जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, उसमें 80% कंट्रीब्यूशन बायोलॉजिस्ट का है, चाहे वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हो, चाहे वो बायोटेक से हो, चाहे किसी से भी हो, 80% कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है। रिग्रेशन एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से है, सही है। तो ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स को डेवलपमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स नहीं आ गया है, मैथमेटिक्स तो अभी भी स्टैटिस्टिशियन को पीछे खींचना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो हमारी ब्रांच है। ब्रांच तो हमारी है। हाँ, ब्रांच नहीं है तो सही है, जो अब आपकी ब्रांच थी वो काफी पीछे छूट गई है। तो इस डिबेट में ही अलीगढ़ में स्टेट डिपार्टमेंट अलग हो गया पहले वहां पे जो फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है जो उसका डिपार्टमेंट का, वहां मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का लगा हुआ है, बट अब स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट सेपरेट है। तो वो इसी झगड़े में कि वो हमारा है तो जो भी कुछ होगा वो हमारे हिसाब से होगा। सही, खैर फर्दर तो यहां तक जब तक हमको ये पूरा एक डिजाइन नहीं होगा, स्टैटिस्टिकल डिजाइन नहीं हुआ हमारे पास अगर है, तो फिर अप्रूवल बाहर फंडिंग एजेंसी अपने साफ तौर से मना कर दिया कि आपके यहाँ आपको अपनी टीम में ये शो करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन स्टैटिस्टिशियन है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन है उनसे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उनको बाहर उन्हें क्वालिफिकेशन मतलब ये आपका काम हमारा काम होना चाहिए, उनका बस ये है। हमारे यहाँ जैसे ये नेट होना चाहिए, JRF होना चाहिए, PhD होना चाहिए, और उनको इससे मतलब ये स्टैटिस्टिशियन चाहे भले ही MSc किया हुआ हो, बट आपकी टीम में एक स्टैटिस्टिशियन होना चाहिए, और वो स्टैटिस्टिकल डिजाइन उस स्टैटिस्टिशियन की ही जिम्मेदारी है, एनालिसिस उसकी जिम्मेदारी है, वो करके देगा, वो अप्रूवल करके वो उसका जिम्मेदार बनेगा। अगर कोई स्केल है जिसमें अपर एंड लोअर लिमिट फिक्स है, हाँ एग्जांपल एनालिसिस स्केल पेन के लिए यूज करते हैं, हाँ जिसमें 0 to 10 होता है, हाँ, तो क्या कंटीन्यूअस वेरिएबल में रखेंगे? 0 to 10 आपका स्केल तो है, बट उसके बीच में तो बहुत सारा फ्रैक्शन है, इनफाइनाइट डेटा कलेक्ट हो जाएगा। आपने अगर स्केल लिया हुआ है, सही है, तो स्केल जैसे हम लोग लेते हैं कि जहां पर रेटिंग करते हैं, रेटिंग है ना, तो आपने वहां पे दिया 1 2 3 4, तो वो रेटिंग जो है वो वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो हमारा क्वालिटेटिव है, क्योंकि वो तो आप सिर्फ अपने जो किसी का ओपिनियन लेने के लिए एक नंबर दे रहे हैं कि आप इस नंबर को टिक कर लीजिए, सही है। उसी की जगह आपने अगर डिसएग्री दिया हुआ तब भी चलेगा। तो अगर 0 to 10 अगर किसी की लिमिट फिक्स है तो उसके बीच में वैल्यू आप कैसे कंसिडर कर रहे हैं? क्या आप न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, होल नंबर। होल नंबर में कर रहे हैं, और आप फ्रैक्शन नहीं लेंगे। जी सर, उसमें स्केल में 0 to 10 होता है, पेशेंट टिक करते हैं, जैसे मेरा पेन 7 के अराउंड है, तो वो क्वालिटेटिव डेटा में जाएगा, वो न्यूमेरिकल डेटा में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्केल दिया हुआ है। स्केल मैंने आपको बताया था कि स्केल क्या है कि चाहे आप एग्री डिसएग्री जाएं, चाहे आप उसको नंबर दे दें, रेटिंग कर, जो हम रेटिंग लेते हैं ना, चाहे आप रेटिंग कर दें। जैसे अभी आप देखते होंगे, हम लोग सब देखते हैं कि जो अमेजन है इसका रेटिंग 4.5 है, 3.5 है, सही है। तो वो क्या है? वो क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, क्योंकि वो तो ऑन एवरेज दिया इसलिए 4.5 आ रहा है, वरना उन्होंने कैसे नंबर कलेक्ट करे हैं? रेटिंग 1 दी है, रेटिंग 2 स्टार दी है, 3 स्टार दी है, 1 स्टार दिया है। तो वहां पे आपने क्या किया हुआ है कि वहां में आपने डिस्क्रीट और ये क्वालिटी एक तरीके से कलेक्ट की है, सही है। तो वहां ऐसी वही सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं कि आपने उसको डिकोड कर लिया, चाहे आप पहले डिकोड कर लिए या आप जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तब आप डिकोड कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर है, सही। जीरो का मतलब क्या हो गया? जैसे जीरो का मतलब जैसे सोच करिए कि मैंने कर लिया कि जीरो का मतलब ये है कि हमको कोई फायदा नहीं हुआ, न्यूट्रल है, नो पेन है, तो नो पेन है। तो अगर आपने पहले से इसे लिखा हुआ नो पेन, फिर कुछ पेन में इंप्रूवमेंट फर्दर इस तरीके से लिखा हुआ है, अब चाहे उसको 0 से 110 के लिए कर दीजिए,
भाई चाहे आप बैंक डिकोडिंग पहले कर लीजिए डेटा की या कलेक्ट करने के बाद कर लीजिए, सही है। इसलिए जब भी क्वेश्चनर बेस्ड जो स्टडीज होती हैं उसमें दो फॉर्म बनते हैं, एक क्या होगा आपका क्वेश्चन होगा, दूसरा क्या होगा उसके पहले से कोड लिखे हुए होंगे, सही है। तो जिस क्योंकि आप डेटा एंट्री वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो, तो वो सारा के कैसा होगा, वो सब डेटा तो वैसे ही है, आपने उसको डिकोड किया हुआ है कि आपने 0 से 10 के स्केल में आपने इस तरीके के स्केल को कुछ नाम भी है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लिकर्ट करके या कुछ लिकर्ट स्केल, सही है। तो आप उसकी एनालिसिस आपको देख लीजिए, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में मिल जाएगा, सही है। तो वो आपने उस स्केल पे डेटा कलेक्ट किया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, वो नंबर नहीं है। भाई हम आप लोग बता रहे थे कि अगर आप सॉफ्टवेयर में 0 to 10 नंबर देंगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देगा जी। अगर जैसे डेटा है, मैंने अलग-अलग टाइम पॉइंट्स पे लिया है। जैसे हाँ। मैंने एक 0 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स का, जी और मैंने अलग-अलग पर्सन से मैंने ब्लड कलेक्ट किया और उसका मैंने डेटा कलेक्ट किया, इस तरीके से। तो वो किस तरह की डेटा में आएगा? देखिए, टाइम पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो तो आपकी एक कैटेगरी हो गई। अब जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा न्यूमेरिकल में कलेक्ट हो रहा है, इसे करिए समझ करिए कि आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में ले रहे हैं या उसका ओपिनियन टाइप से ले रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में है तो वो न्यूमेरिकल डेटा होगा, सही है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपने लिखा है डेटा बेस्ड ऑन द टाइम, हाँ इंटर इन वो लॉन्गिट्यूडनल डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। हाँ, तो इन दोनों में से किसमें आएगा, मतलब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल अगर 1% का हुआ तो नहीं, डिफरेंट पेशेंट्स भी हैं और डिफरेंट टाइम पॉइंट्स भी हैं। डिफरेंट पेशेंट का डेटा है और डिफरेंट टाइम पॉइंट्स का है, तो अब मेरे समझ से ये क्रॉस सेक्शनल में आपको लेके जाना पड़ेगा। इसकी एनालिसिस जो है आप क्रॉस सेक्शनल डेटा में आप करेंगे। हाँ, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी डिपेंड कर जाएंगी कि जैसे कि अगर आप उसको क्लासिफाइड करके अगर कर रहे हैं तो फिर और तरीके से भी हो सकता है, सही है। तो इसके बाद में यहाँ तक तो मतलब कि हमको पहले से ये सब चीजें अपनी अगर जो भी एक्सपेरिमेंट टाइप से अगर कर रहे हैं तो ये सब चीजें हमको पहले से पता होना चाहिए कि हमारा डेटा किस टाइप का कलेक्शन होने जा रहा है। उसके बाद में फिर अगर समझ करिए आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह है या एनालिसिस है किस तरीके से करेंगे, तो उसमें सबसे पहले प्रोसेसिंग में डेटा कलेक्शन तो आपने कर ही चुके हैं, सही है। फिर है डेटा क्लीनिंग का, सही है। तो डेटा क्लीनिंग में बहुत सारे एरर्स हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं बिना सोचे समझे, सही है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे चीजें जैसे हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज। अगर आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, अब उसमें कुछ लोगों ने डेटा नहीं दिया, आपने क्वेश्चन दिया 10 क्वेश्चन पूछा, उसमें से उसने 3 क्वेश्चन का जवाब दिया या 7 क्वेश्चन का जवाब दिया, 2 का जवाब नहीं दिया, सही है, उसने कुछ वहां मेंशन नहीं करा। तो इस तरीके के जब आप कलेक्शन करेंगे तो उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज अगर आ गई हैं तो उनको कैसे हम हैंडल करेंगे, सही है। तो ये क्लीनिंग ऑफ डेटा में आएगा। फिर उसका रिमूविंग द डुप्लीकेट्स, सही है, कहीं पे अगर है। फिर उसके बाद में है करेक्टिंग डेटा एंट्री एरर्स। तो ये सारा चीज जो है हमारा डेटा क्लीनिंग में जाए। तो इस तरीके से हमको कोई भी डेटा जब भी कलेक्ट करेंगे तो उसको हम क्लीन करेंगे। अच्छा, जैसे मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे हैंडल करते हैं अगर किसी ने किया है तो स्टडीज में लिखा होता है इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस कराया है, कंट्रोल की तरह देख लेंगे और मतलब मीन डाल देते हैं। मीन डाल देते हैं, सही है। तो जैसे वही है कि अब जैसे उसमें हम मीन डालें, मीडियन डालें या मोड डालें। मिसिंग वैल्यूज का मतलब बहुत सारी जगहों पे कॉन्सेप्ट ये है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि क्या करेंगे कि हम जैसे एज ले रहे हैं, सही है, बीच में किसी की हमको एज नहीं पता है, बट हमारे पास पॉपुलेशन हमको पता है कि एडल्ट की पॉपुलेशन है, तो उसका मीन जो है, उसकी एज जो है वो उसके मीन के आसपास ही कहीं होगी ना। तो हम क्या करेंगे, उसको मीन वैल्यू से रिप्लेस करें। अब आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा में मीन होता नहीं है, बट आपने क्योंकि आपने 0 1 में लिया हुआ था और उसने मीन निकाल लिया और उसने वो वैल्यू डाल दी। तो हमको जब हमारे ये पता होगा कि डेटा हमने जो कलेक्ट किया है वो किस टाइप का है, फिर उस वहां पे मिसिंग वैल्यूज को किस चीज से रिप्लेस किया जाता है, कि मीन से करें, मोड से करें, या फिर कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू से रिप्लेस करें, है ना। तो इस तरीके से हमको, बट बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपने टोटल का अलग ले लिया, मिसिंग वैल्यूज के वेरिएबल्स को एनालिसिस सेपरेटली कर लिया आपने, वो भी कर सकते हैं। रिमूविंग द डुप्लीकेट्स, तो इसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे आप रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज को। करेक्टिंग द एंट्रीज एरर्स भी कर सकते हैं आप। बट फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे है कि नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। जब भी हम फर्दर एनालिसिस में जाते हैं, खासतौर से स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जब हम जाते हैं, तो हमको
बहुत सारी जो पैरामीटर, उसमें क्लासिफिकेशन है पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक का। तो पैरामीट्रिक में हर एक टेस्ट की स्टैटिस्टिकल टूल्स की कुछ एजम्पशंस होती हैं, जैसे कि टी टेस्ट है या जेड टेस्ट है, तो उसकी एजम्पशंस क्या है कि डेटा शुड फॉलो द नॉर्मलिटी कंडीशंस। सही है, तो नॉर्मलिटी कंडीशंस का मतलब क्या हो गया कि मीन मीडियन मोड जो है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कोइंसाइड या एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। सही है, अगर हमारा डेटा उस तरीके से जो हमारा रियल डेटा है वो हमारा नॉर्मलाइज डेटा नहीं है, यानी उसमें मीन मीडियन हमारे कोइंसाइड नहीं कर रहा है या इक्वल नहीं है, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि हम अगर हमको चाहिए, हमको अप्लाई करना है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस वगैरह, हमको जेड टाइप से अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी वो अदर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सही है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स लगाते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स में स्मूथर कहते हैं। सही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे जो वेल नोन है, जैसे कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हमने ले लिया, यानी किसी डेटा का हमने लॉग ले, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके लॉग ले लिया और फिर हमने चेक करा कि हमारी नॉर्मलिटी कंडीशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही है, तो अगर कर गया तो अच्छी बात है, लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। या हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसमें ऐड कर दी या उससे हमने किसी को डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने देख लिया। सही है, फिर एग्रीगेशन, समिंग द डेटा ओवर टाइम पीरियड्स, फिर है डिकोडिंग द कैटेगोरियल वेरिएबल्स, मतलब जो भी कैटेगोरियल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, डिकोड कर देंगे, मतलब उसकी कुछ ना कुछ हम कोडिंग्स करेंगे। कुछ फिर डेटा रिडक्शन के लिए भी, जैसे कि बहुत फेमस है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो खासतौर से सोशल साइंसेस में तो बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अब उसमें से हम किस वेरिएबल्स को यूज मतलब रिमूव करें या किस तरीके से, हाँ कैसे करते हैं? हाँ, तो इसके ही मेथड्स हैं, टेक्निक्स। जैसे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, हमने कलेक्शन किए हुए हैं, अब उनमें से कौन से वेरिएबल्स जो है हमारे मोर सिग्निफिकेंटली हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेरिएशंस को, वो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो तो मैच पर ऑब्जेक्टिव लगे, जो हम हमारा ऑब्जेक्टिव वजह करें ना। नहीं, वो तो करेंगे ही। जैसे क्या है कि अगर आप नहीं, जैसे हमने डेटा कलेक्शन करने के टाइम हमको नहीं पता कि कौन कौन से मोर इफेक्टिव होंगे। जैसे आपने सपोज करिए कि आप लेना चाह रहे हैं क्राइम इन मर्डर्स में अगर लेना चाह रहे हैं, सही है, तो आपने उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व ले ली कि लिटरेसी, सही है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है उसका, सही है, कैसे माहौल में जो है वो कैसे बड़ा बड़ा है। अब उसमें से हो सकता है कि बाई फॉल्ट के कोई ऐसा वेरिएबल हो जो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको फिर रिमूव करो। मतलब वो हमको पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स लोग जो है, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे रिग्रेशन अगर एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड रूल होता है, सही है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, बैकवर्ड मतलब कि एक एक करके जो है आपको उसकी वैल्यू देता रहेगा कि कितना वेरिएशन कम हुआ, कितना उसे एक्सप्लेन किया, इस वेरिएबल को रिमूव कर देंगे तब कितना सिग्निफिकेंट होगा, इसको रिमूव करेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट होगा। तो बहुत सारे ऑटोमेशन मॉडल्स जो ऐसे हैं वो आपको एक लेवल पे जाकर बता देंगे कि अब इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं, वहां पे आप अपने ले सकते हो। तो वेरिएबल तो इंटरेस्ट थे हमारे 20, बट सिग्निफिकेंटली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ 6 या 7 ही है। बाकी वेरिएबल भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे, बट ये क्या है कि वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वेरिएशन को एक्सप्लेन करने, डेटा के अंदर जो वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। जो डेटा हमारा उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा समराइज हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जिसे नीचे दूसरा पॉइंट लिखा था सेलेक्टिंग द रिलेवेंट फीचर्स, तो ये उसी तरीके से कि कितना रिलेवेंट वेरिएबल्स हमारे रह गए हैं। तो जब हम पीसीए करते हैं तो जैसे मेरे सैंपल्स हैं, हाँ वो डिस्क्रीट अलग अलग है, हाँ कोई पार्ट है, कोई पार्ट है, और उसमें वेरिएशन जो है बहुत अलग है। और इसमें ग्रुपिंग हम हाँ, तो ग्रुपिंग करना कैसे करना चाहिए? ग्रुपिंग क्या इसमें ही एक मेथड है से, तो उसमें क्या है कि जैसे सारे वेरिएबल्स को जब इकट्ठा कर रहे हैं तो वो उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं दे रहे थे, हमने उसको ग्रुप बना लिए। अब वो ग्रुप्स वाइज में जो है एक पूरा एक ग्रुप है और वो एक दूसरे वेरिएबल्स का ग्रुप है, तो वो जो वेरिएबल्स उसमें हम देते हैं कि कोरिलेशन देखते हैं, जिस हिसाब से जिस वेरिएबल के साथ में ज्यादा कोरिलेटेड हाईली कोरिलेटेड है उसको हम साथ में एक ग्रुप बना देते हैं। मतलब हम अपने सारे डेटा रखते हैं, हाँ, डेटा सारा डेटा रख के जो है, अब इसे उसमें क्या है कि हो सकता है कि ये दो ग्रुप जो है ज्यादा वेरिएशन देंगे दूसरे के मुकाबले, मतलब वो एक ग्रुप जो है वो भी हमको ज्यादा वेरिएशन दे रहा है, वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है, बट तीनों को कंबाइन करने के बाद वो नहीं दे रहा है, ग्रुप वाइज करके हमको बता दे रहा है कि इस ग्रुप के साथ में इतना वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है टोटल एनालिसिस में, इसके साथ में इतना हो रहा है। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट प्रोसेसिंग करने के बाद में एनालिसिस पे जब हम लोग जाते हैं, तो एनालिसिस में जो है कि इंटरप्रिटेशन है, और सबसे बेसिक जो एनालिसिस रहती है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या है कि डेटा की समरी में
खास तौर से कि क्या रेंज है उसका, क्या मिनिमम मैक्सिमम है, क्या मीन वैल्यूज है, क्या मोड है, ओके, क्या मीडियन है, और उसके बाद में टोटल समरी क्या, टोटल एग्रीगेटेड डेटा एक तरीका से। दूसरा पार्ट इसका होता है इन्फ्रेंशियल पार्ट। इन्फ्रेंशियल पार्ट में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वगैरह और रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह बाकी जो वो है वो हम परफॉर्म करते हैं। सही है। तो इसमें इन दो पार्ट में हमने इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। अपने 3 दिन का जो सेशंस रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रेफरेंस वाला। डिस्क्रिप्टिव में एक दिन में इसको सोच रहा हूँ कवर करने का। सेकंड पार्ट जो हमारा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसको सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। उसमें हमारा क्या होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत आराम से 1-1.5 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, कोई खास ऐसा चीज है नहीं इसके अंदर। इन्फ्रेंशियल में क्या है कि मेन जो रिसर्चर्स की जो डिमांड है वो इन्फ्रेंशियल है, क्योंकि ओवरऑल जितना हमने करा ये तो मतलब हमको कुछ ज्यादा देगा नहीं, बट इफेक्ट हमारा रिसर्च को इफेक्टिव बहुत बनाएगा, एनालिसिस को इफेक्टिव बहुत बनाएगा, बट उससे काम नहीं चलेगा। इन्फ्रेंशियल में क्या है, तो हमको कौन से जो स्टैटिस्टिकल टूल्स स्पेशली जो होते हैं कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक में कि जेड टेस्ट हमको लगाना है या नॉर्मल टेस्ट लगाना है या फिर टी टेस्ट लगाना है या पीआरटी टेस्ट लगाना है या काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, कब लगाना है। सही है। अगर कोई एम्सन्स होल्ड नहीं कर रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है फिर हमारा इन्फेरेंशियल पार्ट में आएंगी। तो मोस्ट डिमांड जो पार्ट है वो इन्फेरेंशियल पार्ट है एक तरीके से। सही है। तो इसमें अगर फर्दर ऐसा हुआ कि कोई वर्कशॉप इसी कंटिन्यूएशन में हुई तो हम फिर इसको रखेंगे कि इन्फेरेंशियल पार्ट को ही उसमें रखेंगे, उसका हैंड्स ऑन की कोशिश करेंगे अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि कोई भी उसमें हुआ। तो डिस्क्रिप्टिव तो हम कल कवर करेंगे। उसके बाद 2 दिन का हमने टाइम रखा है इन्फेरेंशियल पार्ट के लिए। सही है सर। क्योंकि इन्फेरेंशियल पार्ट में अगर मैं क्लास बेस के हिसाब से पढ़ाऊं तो वो 1 दिन में मैं खत्म करता हूँ। जो यहाँ पे कुछ रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए हैं जिनको मैंने खत्म किया हुआ है, क्योंकि मुझको 7 दिन मिले थे रिसर्च मेथोलॉजी की यूनिट पढ़ाने के लिए तो उसमें मुझे खत्म करना था पूरा एक एमएससी का सिलेबस, तो मैंने किया है। अच्छा, पीसीए बता, पीसीए थोड़ा एग्जांपल के साथ बताइएगा। पीसीए का अगर आपको एग्जांपल तो हम उसको उसी को जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में कल जो है एक छोटा एग्जांपल हम उसको सॉल्व तो यहाँ नहीं करेंगे, उसका सॉल्व तो हम यहाँ नहीं करेंगे, बट उसकी एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहीं से उठा के आपके सामने हम रखेंगे किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। हाँ, बस डेटा सेट छोटा सा, हाँ फार्मूला या कुछ क्या करना चाहिए, क्यों कब हम अप्लाई करते हैं करेंगे। सही है। तो यही मैं रिग्रेशन में भी यही करूंगा कि जैसे रिग्रेशन में हम जो लेते हैं कि हमने वेरिएबल तो ले लिए 20-30 ले लिए, अब उसमें रिलेवेंट वेरिएबल्स वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया रिसर्च तो हमारे 20 वेरिएबल्स इसीलिए लिए थे कि वो 20 के 20 रिलेवेंट हैं। सही है। इसीलिए उनका डेटा कलेक्ट करा, सारी मेहनत उसके लिए करी, बट जब हम एनालिसिस में गए तो हमें पता लग रहा है कि वो तो रिलेवेंट नहीं है। बट वो कौन से रिलेवेंट नहीं है उन 20 में से, क्योंकि हमारे लिए तो स्टार्टिंग में तो वो 20 रिलेवेंट थे। अब एनालिसिस पे पहुंचने के बाद उसमें से हमें पता लग रहा है कि 5 या 6 ही रिलेवेंट है, बट वो कौन से हैं। ऐसे ही फैक्टर एनालिसिस में है, इसमें पीसीए में है कि अगर बड़ा डेटा है उसको हम जब रिडक्शन कर रहे हैं पीसीए के द्वारा, पीसीए को यूज करके, तो उसमें हम किस तरीके से और क्या रिलेवेंट हमारे लिए होना चाहिए। तो इन दोनों का जो है मैं रिग्रेशन वाला पार्ट का तो जब इन्फेरेंशियल करेंगे तब करेंगे, पीसीए वाला जो है फिर हम उसको कल उसमें एक इंक्लूड, बट उसका भाई लाइव डेमो जो है थोड़ा भी हो सकता है कि ना सही रहे हमारे लिए, बट हम एटलीस्ट कहीं भी जहां भी सॉल्व एग्जाम्पल होगा वो हम उसको बताएंगे और उसमें किस तरीके से उसको कर रहे हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। एनोवा और मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट, हाँ, ओके, और कोवेरिएंस, हाँ। इन तीनों कोवेरिएंस तो हमारा एक तरीके से थोड़ा सा एनोवा में ही कवर हो जाता है। सही है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप थोड़ा आपके डेटा है। बेटे एनोवा तो हम जाते ही इसलिए हैं कि जब हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, फिर उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, 1 वे एनोवा और 2 वे एनोवा। सही है। वो डिपेंड करता है, एक में सिंगल फैक्टर मतलब एक फैक्टर के साथ में एक लेवल है, उसमें क्या है 2 फैक्टर हैं और डिफरेंट लेवल्स हैं, तो फिर वो 2 वे और 1 वे में क्लासिफिकेशन हो जाता है। बट वो है कि दोनों की कंडीशन यही है कि जब हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, अगर अप टू 2 वेरिएबल्स हैं तो हम सिंपल सीधा टी टेस्ट यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत उसमें है ही नहीं। तो वो एक तरीका से टी टेस्ट का ही जनरलाइजेशन पार्ट है फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 ग्रुप्स के लिए। सही है। बट इसमें ये होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जैसे खास तौर से फार्मा में
फॉर्मा में, ये कह सकते हो कि रियल लाइफ में जो रिसर्च होती है उसमें मोस्टली जो है वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं। बट क्यों? क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। अब इसे कोई आप ड्रग के लिए काम कर रहे हैं तो आप सबसे इनिशियल क्या है कि भाई कोई एनिमल ले रहे हैं। आज के जमाने तो एनिमल भी लेना कोई आम बात नहीं रही कि मतलब पहले तो जहां से मन चाहे वहां पकड़ लो, कोई एथिक्स का और इस सब का मामला नहीं रहा। अब तो 2 भी लेना, उसके लिए भी आपको हजारों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ से एथिक्स लो, वहां से लो, पेटा ये दुनिया भरे का है। तो बहुत छोटा सैंपल साइज रहता है, ज्यादा से 4, 5, 6, 8, 10 होता है। तो जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जो हमारी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिवाइड हुई है वो बेस्ड ऑन द सैंपल साइज। सबसे पहला सैंपल साइज का ही है कि अगर सैंपल साइज स्मॉल है, स्मॉल से मतलब कितना, कि उसमें भी है कि कितना स्मॉल, स्मॉल तो 1 भी है और स्मॉल तो 20 भी है, 30 भी है, तो लेस देन 30, कि अगर लेस देन 30 है तो भाई हम नॉर्मल टेस्ट तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में नॉन पैरामेट्रिक में सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि हमें उसमें कोई भी एजम्पशंस नहीं माननी है, कोई एजम्पशन नहीं माननी कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, बाइनोमियल को फॉलो करना चाहिए, पॉइजन को फॉलो करे या ना करे, किसी को फॉलो करे या ना करे, हमें इससे मतलब नहीं है। तो वो जो है नॉर्मल, जो खासतौर से जो रियल लाइफ जितनी भी रिसर्च है या जितनी भी स्ट्रीम है जहाँ पे ये सब, वो जब ज्यादातर जो है नॉन पैरामेट्रिक हमारी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई होते हैं और उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हर एक का अल्टरनेट है कि पैरामेट्रिक अगर इसका ये है तो नॉन पैरामेट्रिक क्या होगा, yes? तो उसमें हर एक अल्टरनेट है, मैक्सिमम नॉन पैरामेट्रिक का अल्टरनेट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, बट उसकी सिचुएशंस क्या है। तो उसमें एक सबसे कॉमन चीज ये है कि हमको कोई एजम्पशंस तो मानी नहीं है, उसमें कोई एजम्पशंस नहीं होती जितनी नॉन पैरामेट्रिक होती है कि जैसे नॉर्मलिटी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, वेरिएंस हमको नोन है तो हम ये टेस्ट लगाएंगे, वेरिएंस अननोन है तो ये टेस्ट लगाएंगे, टू ग्रुप्स हैं तब हम ये वो हम कोशिश करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा अगर होगा तो मैथमेटिक्स वालों को भी हेल्प लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जो प्योरली मैथमेटिक्स है, बट हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, सही है, ले लेंगे कोई दिक्कत। तो ये चीज हम कल डिस्क्रिप्टिव का कंप्लीट करेंगे और जिसमें हम एक मतलब ऑन डिमांड इसलिए हम कर लेंगे पीसीए को जो है उसका एक मतलब थोड़ा डेमो टाइप का एक्सपेरिमेंट कोई भी लेंगे उसको करके देखेंगे, सही है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कुछ बोलो है स्पेसिफिक ही तो थोड़ा सा भी अगर किसी को स्पेसिफिकली अगर इंटरेस्ट है तो वो कभी भी आ जाए, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आप डिपार्टमेंट में आ जाइए कभी भी स्पेसिफिकली, अगर आपको स्पेसिफिक किसी भी चीज पे अगर कोई बात करनी है तो आप डिपार्टमेंट आ जाइए, टॉक्सोलॉजी डिपार्टमेंट में, सही है। तो वहां आप हम लोग मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि सबको जनरलाइज करके कंप्लाई, तो हम एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या जो मोस्ट रिलेबल हैं हमारे लिए उनको हम डिस्कशन पूरे करेंगे, सही है। इन्फ्रेंशियल में मगर थोड़ा सा आप लोगों से ये रहेगा कि आप थोड़ा सा इन्फ्रेंशियल में क्या पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो थोड़ा सा अगर एक मेजर भी आप अगर डाल के आएंगे तो थोड़ा हमको एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें फिर क्वेश्चनिंग जब होगी तो फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सही लगेगा कि हाँ भाई समझ में आ रही है चीज या मतलब ऐसे हो रही है, सही है। और इसमें मैं जो इन्फ्रेंशियल पार्ट में एनोवा को जो कंप्लीट करेंगे तो एनोवा में हम वही सॉल्व एग्जाम्पल कोई लेके देखेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से हमारा अगर इस तरीके फैक्टर और लेबल्स का किस तरीके से कनेक्शन होता है, किस तरीके से हम किसको फैक्टर मानते हैं, किसको हम लेबल्स लेते हैं, ये थोड़ा सा हम उसमें डिस्कशन करेंगे, सही है। फिर इसमें थोड़ा सा डेटा प्रेजेंटेशन के हम लोग को अपने डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करें, ये भी थोड़ा सा मतलब बेसिक वाला जो है कि टेक्सचुअल में अगर हमारा क्वालिटेटिव डेटा है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से हम क्या क्या चीज कैसे समराइज कर सकते हैं डेटा को, समराइज सर्वेज फाइंडिंग इन रिपोर्ट्स या फिर टेबुलेशन प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, सही है। तो पहले वही कि लॉन्ग डेटा है तो उसको सिंपल बेसिक, ये सब बेसिक हैं कि अगर एक सबसे नॉर्मल लेवल पे हम क्या डेटा को किसी के सामने अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारा बेटर वे क्या हो सकता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसे हमारा अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो क्वालिटेटिव डेटा हमने बताया था किस तरीके का, वही नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा ही होगा उसके अंदर, तो उसको जो है हम एक सर्वे मतलब टेक्सचुअली टाइप से हम थोड़ा उसको फाइनिंग कर सकते हैं। टेबुलेशन में क्या होगा कि ज्यादातर टेबुलेशन डेटा के लिए हम कैसा डेटा होगा कि हमारा न्यूमेरिकल डेटा होगा यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा होगा। तो अगर क्वांटिटेटिव डेटा हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स में है तो उसको हम समराइज एक टेबल्स में कर सकते हैं जिसमें मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम को रख के जो है हम थोड़ा उसको समराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं नंबर ऑफ पेशेंट्स रिकॉर्ड इन द हॉस्पिटल का है तो हम मतलब अब दिन भर में अगर 200 या 300 पेशेंट आए हैं तो अगर 200-300 का सीधा लिस्ट बना के ले जाएंगे और सुपरवाइजर को दिखाएंगे जाएगा तो वो तो पगला जाएगा देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। और उसी को हम सिर्फ ग्रुप वाइज कर लेंगे, समझ करिए कि हमने एज ग्रुप का ग्रुप बना लिया और उसमें हमने कर दिया कि
5 से 10 एज ग्रुप के इतने लोग आए हैं, 10 से 15 वाले इतने हैं या इतने हैं, या फिर जैसे कि फीवर का और अलग कर दिया, सही है, बोन्स ब्रोकन वाले अलग कर दिए, तो वो एक क्या हो जाएगा, एक समराइज डेटा हो जाएगा, देखने से ही एकदम पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पेशेंट किस तरीके आ रहे हैं, किस तरीके। तो इस तरीके से टेबुलेशन में इस तरीके के डेटा को हम टेबुलेशन में वो कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमको दिखाना है तो हम कौन से डेटा के लिए क्या ग्राफ सुटेबल होते हैं, जिसे पाई चार्ट है और बार चार्ट है। तो ये जो है क्वालिटेटिव डेटा के लिए बहुत मतलब बेहतर यूज होते हैं और यूज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब हम न्यूमेरिकल डेटा के लिए नहीं यूज कर सकते, बट क्वालिटेटिव डेटा में ये मोस्टली ये दो चार्ट यूज करे जाते हैं, जहाँ वो करना चाहिए। लाइन ग्राफ है, जैसे कि लाइन ग्राफ जो है मोस्टली हम जब भी ट्रेंड को शो करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि लाइन ग्राफ को हम प्रेफर करेंगे। और हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट से, हिस्टोग्राम जो है जब भी हम, अगर हमारा डेटा किस तरीके का है, फ्रीक्वेंसी टाइप का डेटा अगर है तो हम, या कंटिन्यूस डेटा है, लेंगे सबको दिक्कत नहीं। तो कंटिन्यूस डेटा अगर हमारा है तो फिर हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम को प्रेफर करेंगे। स्कैटर प्लॉट को मोस्टली कब यूज करते हैं, कोई और बता सकता है? स्कैटर प्लॉट को, ये इन सबसे स्पेसिफिक अलग है। जब भी हमको रिलेशनशिप शो करना होती है, आपने देखा होगा कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे डेटा, जब भी हमारा पेयर वाइज डेटा होगा तो हम स्कैटर प्लॉट करेंगे। अब चाहे वो कोरिलेशन का हो चाहे कुछ भी हो, जब भी हम अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप अगर बताना चाह रहे हैं एक साथ अगर डेटा है, यानी कि डेटा अगर हमारा कलेक्टेड है पेयर वाइज के, किसी के एज 10 पे वेट क्या है, सही है, तो ये बाइवेरिएट डेटा हो गया, दोनों एक ही साथ वैल्यूज हैं। तो उसमें केसेस में हम क्या करते हैं कि हम स्कैटर प्लॉट को मोस्टली प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं। इसमें अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो मोस्टली जब भी हम इनिशियल लेवल पे कोरिलेशन को अगर देखना चाह रहे हैं तो हम स्कैटर प्लॉट पहले प्लॉट करते हैं। और ये हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताएगा, बट क्या है कि ये इतना बताएगा कि हाँ डेटा आपका कोरिलेटेड है या नहीं है, या पॉजिटिव कोरिलेटेड है या नेगेटिव कोरिलेटेड है, या सर्कुलर कोरिलेशन है, किस तरीके का कोरिलेशन है, इससे हमको ये अंदाजा लग जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हमको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फिर डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हम यूज करेंगे, सही है। तो ये तो यहाँ तक प्रेजेंटेशन और आपका डेटा कलेक्शन, डेटा मेजरमेंट उसका और डेटा इस तरीके का था। कल हम इसकी बात करेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की, कि अगर हमारा डेटा नॉमिनल है या ऑर्डिनल है या सीधा कह सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा है तो हम किस तरीके की एनालिसिस परफॉर्म करें उस पर इनिशियल लेवल पे। फर्दर तो फिर हम उसको अगर हम मॉडिफाई करते जाएंगे तो फिर हम कुछ और भी एनालिसिस कर सकते हैं, सही है। तो और उसमें दूसरा पीसीए, इन दो टॉपिक्स को कल हम कोशिश करेंगे कवर करने की, और नेक्स्ट 2 डेज में जैसे बताया कि इन्फरेंशियल पार्ट को हम कवर करेंगे। अब कोई क्वेश्चन किसी तरीके का? जो स्कैटर्ड प्लॉट है, हाँ, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, सैंपल ओनली वन, सैंपल वन से मतलब क्या है कि जैसे अगर एक ही क्वांटिटी है अगर आपके पास है, नहीं हाँ, एक ही सब्जेक्ट, एक ही नहीं सब्जेक्ट जिस, सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 हुआ, हाँ, सैंपल 10, वो हर सैंपल का आप कर सकते हैं। जैसे एक सैंपल में क्वांटिटी तो 2 ही हैं आपके पास, कि जैसे मान लो 2 वेरिएबल तो वहां पे 2 ही हैं, कि एक हाइट एक वेट है सपोज करिए, या प्राइस डिमांड है, सही है। अब प्राइस डिमांड का एक सैंपल आपने जामिया हमदर्द से कलेक्ट किया, एक आपने मतलब प्राइस मतलब कह रहा हूँ जैसे कि एजुकेशन पे अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, एक सैंपल आपने यहाँ से लिया और एक आपने जामिया हमदर्द से लिया हुआ है, सॉरी इससे जामिया मिल्लिया से लिया हुआ है, तो आप यहाँ के डेटा के लिए एक सेपरेटली कर सकते हैं वहां के लिए। अब ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो उन दोनों के डेटा के बीच में जो कंपेरिजन है उसके लिए आप दूसरा कोई यूज कर सकते हैं, जैसे कोरिलेशन टेस्टिंग के लिए, सही है। तो ये जो है किसी भी सैंपल का हो, ये मतलब ये है कि जो स्कैटर प्लॉट होता है वो ऑलवेज इसको हम कहते हैं बाइवेरिएट डेटा, कि एक पॉइंट पे एक टाइम पे 2 क्वांटिटीज को ऑब्जर्व किया गया है, सही है। और किसी को? मैं जब ICMR में था तो वहां पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका पेपर नहीं आ पाया, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम थी कि जो
डिस्ट्रीब्यूशन, मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो चलता है फ्लोरेसिस के लिए हर साल में एक बार वो दवा देते हैं जो, तो एलिमिनेशन की प्रॉब्लम चल रही थी। एलिमिनेशन जो है कि अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है या मतलब पूरा स्टेट लेवल पे है या फिर विलेज लेवल पे है या फिर ब्लॉक लेवल पे, तो अगर हम किसी एक को यूनिट मान के एलिमिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो कौन सा हमारे लिए इकोनॉमिकली बेटर होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो काफी बड़ी यूनिट हो जा रही है, उसमें पॉपुलेशन एक मेंशन थी कि इतनी बार पॉपुलेशन है तो हम इतना उसको ब्लॉक मानेंगे, अगर इतनी पॉपुलेशन है तो उसको डिस्ट्रिक्ट मानेंगे, इतनी पॉपुलेशन है तो उसको हम विलेज मानेंगे। तो हम लोगों का जो काम था, हम लोगों को जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि इकोनॉमिकली कौन सा बेस्ट मॉडल है। तो उसमें हम लोगों ने किया तो हमारा जो आया सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि अगर हम ना तो डिस्ट्रिक्ट पे जाएं ना ब्लॉक पे जाएं, अगर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम एलिमिनेशन को लेके चलें और उसकी अगर हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये था कि वहां पे जो फाइलेशन आपको पता हुआ कुछ लोगों को कि मॉस्किटो बाइट के, तो वहां पे क्या है कि अगर इतने टाइम्स मॉस्किटो ने काटा हुआ है किसी इंसान को तब हो सकता है कि चांस होगा कि उसको फाइलेरिसिस होगा। तो उसमें था कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर पॉपुलेशन को अगर हम लें और वहां पे अगर हम एलिमिनेशन को, तो वो सबसे बेस्ट इकोनॉमिकली मतलब सबसे बेस्ट होगा। तो उसको आईसीएमआर ने और फिर उसके बाद WHO ने एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी हम लोगों की तरफ से पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाता। किसी को और जैसे इंडिविजुअली अगर कोई भी चीज है, मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ सबको नहीं कवर कर पा रहा हूँ, तो वो मतलब हम लोगों के साथ में कभी भी आके बैठ के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम का जो है ना वो क्लियर नहीं हुआ है कि आपने जो वेरिएबल दो वेरिएबल जो आप वो कर रहे हैं ना, हाँ हाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो आप प्लॉट कर रहे हैं ना, हाँ जो कोरिलेशन सपोज कोरिलेशन, हाँ मैडम कह रही है मान लो प्लॉटिंग के बाद हमें लग रहा है कि हमारा जो डाटा है वो ठीक नहीं आया, मतलब ठीक था, इन द सेंस क्या जैसे कि रिलेशनशिप सही नहीं है। जैसे सपोज करिए कि प्राइस और डिमांड का है, या सपोज सबसे बेसिक वाला जो लाइफ साइंस की मैं यूज करता हूँ हाइट और वेट का है, कि अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो वेट तो इंक्रीज करना ही करेगा। ये एक मतलब वो है, नहीं तो फिर वो अंडर वेट और ओवर वेट में मतलब मसला आ जाएगा। तो अगर नहीं इंक्रीज हो रहा है वेट, किसी का वेट सपोज करिए डाउन जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप को क्या कहेंगे कि वो निगेटिवली कोरिलेटेड है। तो ये जो ग्राफ से जो हमको सिर्फ पता चलेगा उसकी डायरेक्शन पता चलेगी, जो भी रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच की उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या सर्कुलर है या कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा फिर है कि आप उसको फिर कहां से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स पे आपको देखना पड़ेगा। हाँ भाई वो तो वो सब फिर वो क्या, अब इसे समझ करिए कोई प्राइस को ले ले और कोई एक ऐसा ले ले जो उसका कोई लेना देना नहीं है, भले वो इकोनॉमिक का ही है, अब उसको आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या सेट ही नहीं हो रहा है। हाँ तो जब नो कोरिलेशन में जब होगा, अब इसे बहुत सारी जगह हम लोग मैथमेटिक्स में जब हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरिलेशन जीरो है, सॉरी अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट तो कोरिलेशन जीरो होगा, बट अगर कोरिलेशन जीरो है तो कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। हाँ तो अगर इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन जीरो होगा, ये तो प्रूफ्ड है एक तरीके से, बट अगर कोरिलेशन जीरो आया तो आप ये नहीं कह सकते ये दोनों वेरिएबल फिर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ये नहीं कह सकते उससे आप। तो वैसे तो फिर बायोलॉजी वाले मैथ का यूज तो कर ही रहे हैं ना कहीं ना कहीं। जी सर है जी सर मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, हमारे में है ना जो स्कैटर प्लॉट बनाते हैं हम कंसंट्रेशन और अब्जॉर्बेंस के बीच में, हाँ तो उसमें से आर स्क्वायर वैल्यू जनरली होता है कि 0.99 आनी चाहिए, तो उसके पीछे का रीजन हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा। 0.99 का मतलब ये हो गया कि 100% रिलेटिव मतलब रिलेशन है दोनों के बीच में, सही है। अब जैसे आप उसको लेके चल रहे हैं कि स्ट्रांगली, उसको अगर हम उस टेस्ट में कहेंगे स्ट्रांगली रिलेशन है दोनों के बीच में, स्ट्रांग रिलेशनशिप है 0.99, क्योंकि उसकी लिमिट ही -1 से 1 के बीच में है, तो 0.99 तो हम लोग बनी हो गया, फिर उसमें ट्राई किया गया। तो आप उससे आप कह रहे हैं कि अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे हुआ 0.785 आ गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सही है। तो वही मैंने बताया कि जो स्ट्रांगली या वीक कोरिलेशन का जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर और डिपेंड करता है कि रिसर्च के ऊपर, कि आपकी रिसर्च किस तरीके मतलब किस तरीके का आपका रिजल्ट आपको चाहिए, वो अपने उसके ऊपर, उसका कोई यूनिफॉर्म वो नहीं है कि अगर 0.99 आया है या 0.75 आया है या 0.85 आया है तब हम स्ट्रांगली कोरिलेशन कहेंगे या वीक कोरिलेशन कब कहेंगे। बस इतना है कि जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा 1 की तरफ
कोरिलेशन स्ट्रांगली कोरिलेटेड होता जाएगा, जैसे जैसे अप्रोच करेगा जीरो की तरफ। अब उसमें कैटेगराइज आपको अपना बनाना है कि आप किस तरीके के ले रहे हैं। आर चल रहा है काफी आर। हाँ, और सब मैं और पे ही करता हूँ काम सारा। जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी वो आज की होगी। टाइमिंग क्या है सर? आर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक तो वो फ्री अवेलेबल है, इजीली एक्सेस अवेलेबल है, लाइब्रेरी बहुत रिच है। बहुत रिच है, और दूसरा ये है कि उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, बहुत अच्छे सिटी भाई, होना चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगा ना, ये उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। आप कोई भी क्वेश्चन डालिए, आपको फॉरम्स का वो मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा, हर बहुत एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है। जिसे हम ये जाते हैं ये इतने महीने जो लग जाते हैं, और सही बात है। प्रोजेक्ट इतने लगे। लिटरेचर सर्वे भी आर से होना चाहिए so that you know you get नहीं, इस बार थोड़ा सा आर जो नॉन स्टेटिशियन उनको प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जैसे जो नॉन स्टेटिशियन है या फिर जो प्रोग्रामिंग इनको नहीं आती, वहाँ वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है, बस इतना प्रॉब्लम है उसमें कि आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे सी, एटलीस्ट सी प्लस, पूरा सॉफ्टवेयर सी प्लस पे बेस्ड है, तो आपको थोड़ा सा सी मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई ये फॉर लूप्स कब लग रहा है, व्हाइल लूप कब लग रहा है, ये लूप कब लग रहा है, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा। तो स्टैटिस्टिशियन के लिए क्या है कि उन्होंने अपना स्टैटिस्टिकल फार्मूला पता है, उस फार्मूले को जो है कंप्यूटेशनल कैसे कन्वर्ट करना है वो फटाफट उसमें आर में कर लेते हैं। जैसे मीडियन निकालना है, मीडियन का आर में डिफॉल्ट कोई भी कमांड नहीं है, उसके लिए आपको अपना कोड लिखना पड़ेगा। तो उसमें कोई स्पेसिफिक कमांड, अगर इवन ऑड नंबर में अगर डेटा है तो वो दे देगा मीडियन। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर 5 है तो मीडियन कितनी होगी, अरेंज करिए डेटा को, और जो मिडिल वैल्यू तीसरी वैल्यू जो होगी वो मीडियन होगा। सही है, तो इस तरीके का डेटा अगर डिस्क्रीट डेटा में है तो दे देगा। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा है तो मीडियन नहीं देगा आपको। तो वहां पे फिर क्या है कि सीधा अपना कोड बनाइए और काम करिए अपना। तो इसलिए आर डिमांडेबल इसीलिए है सिर्फ कि वो बहुत फ्रीली एक्सेसिबल है और बहुत इजीली आप उस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट नॉन स्टेटिशियन के लिए वेरी इजी स्टैंडर्ड जो है वो SPSS है या फिर और दो एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उनको सिर्फ उनको पहले से उन्होंने फिक्स है दिमाग में, हमको एनोवा करना है, फटाफट इधर उधर से गए, एनोवा पे क्लिक किया, रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा असल में रिसर्च में जाने से पहले थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का जो है ना, थोड़ा सा नहीं सर, यूजीसी ने जो कोर्स वर्क का कॉन्सेप्ट रखा है वो इसीलिए रखा है कि कोई भी रिसर्च में जाए तो उसको पता नहीं डाटा क्या है, हाँ क्या है, उसमें आप कहीं का भी उठा के देखिएगा सिलेबस, कहीं का भी सिलेबस उठा के रखिए, उसमें कंपलसरी है चाहे वो भले ही 1 यूनिट रखें, उनको स्टेट्स की 1 यूनिट रखना है, थीसिस राइटिंग का 1 यूनिट लिखना है, प्लेरिज्म का 1 यूनिट उनको रखा हुआ है, एथिक्स का 1 यूनिट रखा हुआ है। तो जो कॉमन सिलेबस है वो यूसी ने बहुत यही इसीलिए रखा है कि कोर्स वर्क जब बच्चा करेगा तो कम से कम उसको ये है नहीं, वो तो है, मतलब अब तो कंपलसरी हो गया है ना, अब तो कंपलसरी है, पूरा कंपलसरी है। तो हम लोगों के यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, सब जगह यूजी ने कंपलसरी कर दिया, आपको कोर्स वर्क करना ही करना है, वो सिर्फ इसीलिए करा गया है। बल्कि मास्टर्स 3rd सेमेस्टर में भी है ये, हाँ, है ना, उसमें भी है। लाइफ साइंसेज में तो बहुत कम जगह पे स्टैट्स मिलेगा। अब यहाँ तो मैं देख रहा हूँ हर डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट है कम से कम, भले ही उस वक्त उसको बच्चे को ना समझ में आए, मगर जब वो रिसर्च में जाएगा तब उसको याद तो नहीं। एक आप फार्मा में कोई एक है तो वो जी हाँ, लोड हमारे का काफी है, बस ये है। देखिए कभी कभी होता है कि ना भी हो तब भी हम अप्रोच कर लेते हैं, मगर हमारे यहाँ अपने इंडिया में, मैं बाहर गया तो नहीं हूँ, मगर जिसे जो लोगों के साथ काम करके देखा, उन लोग वहाँ पे वो स्पेसिफिक जिस फील्ड के हैं बस वो उसी फील्ड के स्पेसिफिक बन के रहना चाहते हैं। हमारे क्या है, हम जिस फील्ड के हैं उस के स्पेसिफिक बन के नहीं रहेंगे, दूसरे फील्ड के स्पेसिफिक बनेंगे। क्यों? जैसे उसका क्या रीजन है कि हम किसी को अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम बायोलॉजी का काम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिशियन उसमें आए या मैथमेटिशियन उसमें आए। नहीं सर, बहुत अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है, बहुत कम स्टार्ट हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूँ बहुत कम स्टार्ट। डिपार्टमेंट में ग्रुप जैसे हम लोग यहाँ क्यों बन जाते हैं, इसीलिए बन जाते हैं कि मेरा काम दूसरा ना कर ले। डेटा तो इतना है नहीं सर, डेटा देखिए, डेटा जब जो ICMR के जो अभी जो DG आए हैं उन्होंने साफ कह दिया कि कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए।
मल्टीडिसिप्लिनरी का। तो उन्होंने हर उनके यहाँ अब आईसीएमआर में क्या लिस्ट जा रही है, वहां पे जब मैं था कि ये साइंटिस्ट किस किस अदर डिपार्टमेंट के, मतलब कोई इसमें क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ वाले में अगर है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये इसमें जेनेटिक्स में क्या कर रहा है, जेनेटिक्स में क्या कोरिलेशन अपना कर रहा है, क्योंकि आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो है ही ना एटलीस्ट। फिर आप उसमें आप जिसमें स्पेसिफिक है उसका कंट्रीब्यूशन दूसरे में दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो किस तरीके दे सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिशियन है, स्टैटिस्टिशियन हर डेटा एनालिसिस में दे सकता है अपना कंट्रीब्यूशन, और हर जगह एनालिसिस हो रही है, हर जगह एनालिसिस हो रही है, वो चाहे किसी भी में भी हो। इवन मैथमेटिक्स वाले भी एनालिसिस तो करके देते ही हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का ही पार्ट, कोई भी पार्ट हो एनालिसिस आपको करना ही करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी हैं, बहुत सारी कहीं पे कमियां हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, चल रहा है, चलते रहेगा ऐसे ही। मगर हमारा जो इसका मोटिव है, सर ने जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज एक बार आपको आ जाए कि मेरा अगर डेटा इधर से इधर ऐसे हो जाएगा तो मैं कहाँ पे एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगी मेरी, करना क्या है, बस ये मेन चीज है। अब देखिए सिर्फ जो अगर रिसर्च पर्पज से मैं आपको बताऊं, सिर्फ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है आप लोग, मतलब यहाँ आने के बाद में बाकी मीन मीडियन मोड वगैरह तो कुछ काम का नहीं है। डेटा भी क्या है, हमने जो जितना पढ़ाया ये भी मतलब कहीं भी रिसर्च में काम नहीं आता। बट एनालिसिस के वक्त हमको जब जरूरत पड़ती है तब हमें बेसिक पता होना चाहिए, अगर हमारी गड़बड़ हुई होगी तो कहाँ हुई होगी। जब किसी सब्जेक्ट की आपको फॉर्मल नॉलेज होती है तो वो आपको यूज जब आती है जब आपकी मिस्टेक होती है कहीं पे जाके, वरना फिर कोई नहीं। अब जैसे मुझको क्या, अगर मतलब लाइफ साइंस के बारे में मैं इतना डरता था बायोलॉजी से कि समझ नहीं सकते, और मुझे ने कभी नहीं सोचा कि मैं बायोलॉजी वालों को पढ़ाऊंगा। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो मैं उससे पहले मैं ये सोचता रहा था कि उनको पढ़ाना है, क्योंकि मैं आईसीएमआर थोड़े दिन पढ़ाया था, उनको पढ़ाना है बिना मैथमेटिक्स, और स्टैटिस्टिक्स को मैं बिना मैथमेटिक्स यानी बिना एक्सप्लेनेशन के कैसे पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आता था। क्या कैसे उनको हम बताएंगे कि बेस थ्योरम क्या है, कैसे हम उनको बनाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, जब तक उनको हम एक फार्मूला नहीं बताएंगे। मगर अब जब मैंने एक सेमेस्टर पढ़ाया, अभी पढ़ा रहा हूँ, अब थोड़ा देर आ गया कि हाँ किस तरीके से हम लेकर चल सकते हैं। इसमें बस ये एक, और बायोलॉजी वाले जितने भी उनको क्या है भाई, रिसर्च लेवल पे जाके सिर्फ एनालिसिस करना है, टी टेस्ट जेड टेस्ट यही लगाना है बस। इसके अलावा कब बस ये है कि अब हम मेरा इसका मकसद ये है कि ये पता चल जाए कि हमको कब कौन सा लगाना है, बस इतना, बस यही है। और ये सिर्फ हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में कवर हो जाएगा, और हम कोशिश अब बस इसका ये है, अगर हैंड्स ऑन की जरूरत पड़ेगी तो फिर देखते हैं कि क्या उसमें हो सकता है सर, अगर सही है। आर पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आर पे जैसे लाइब्रेरीज वगैरह को कैसे यूज करना है, बेसिक लो भाई, उसी में यार भाई बेसिक के पहले बेसिक आप नॉलेज कर लीजिए, जहाँ से मतलब उनकी जो हमारी रिक्वायरमेंट जिस तरीके का हमें डेटा एनालाइज करना है तो उसमें हमें क्या चीज यूज करनी है, उस पे हमारा फोकस है। आर के बाद फिर नेक्स्ट हम करा देंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग पे करा देंगे। नेक्स्ट जो है डॉक्टर सौरभ साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी क्या आदमी ढूंढे अच्छा सा मॉडलिंग चाहिए। मैथमेटिक्स मॉडलिंग में तो अपने अलीगढ़ में बहुत सारे बेहतरीन मॉडल पड़े हुए हैं, आईटी बहुत। ओके, हाँ आज का हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं। हमारे प्रोग्राम को ना रिस्पेक्टेबिलिटी चीजें क्लियर होगी, ऐसी बात नहीं है। और बस यही है कि थोड़ा सा एग्जांपल है ना वो लेके जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको डाल दूंगा। 9443 अभी अलीगढ़ नंबर बता नहीं आपने? 84 30 32। कौन सा बैच आपका अलीगढ़ का? मेरे साथ वहाँ पे था 2008 वाले बैच में, एमएससी में।